अपने को रिकॉर्डिंग इसमें से मिलेगा, करना पड़ेगा अलग? सर फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हमसे पूरा मिल जाएगा। कर रहे हैं ना? आपके पेज से फेसबुक लाइव होगा, मैं वही कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके। Yes, we are live. स्टार्ट कर रहे हैं। You are live.
कॉल आएगा ना? Hello. Yes. Yeah, Harsha. Can we? Yes. Good afternoon, sir. Thank you for joining us on Youth Questions by Digital Parliament. This program is being supported by National Institute for CSR and Asia Foundation. And we have ED Times, one of the fastest growing youth media blog as our outreach partner. So welcome everybody. Thank you for joining us as well. Today we have with us one of the most seasoned politicians of Indian politics, Shri Gopal Shetty ji. He rose from the ranks in politics by being a 3-term corporator since 1992, 2-term MLA and 2-term MP since 2014 in Modi ji's government. He is known as a leader who is well connected with the people and has successfully taken every initiative of the central government to the masses. For Corona, he is on the field since day one. He is having 100% attendance in the parliament and now has marked his attendance in digital parliament also. Welcome, sir. Thank you, Charusula, and thank you, Harsha, and thank you all the viewers who are watching this program. Let me congratulate and give my best wishes on the eve of Friendship Day. I would start from the points which are given to me. First of all, vocal for local Atmanirbhar, which our great Prime Minister Narendra Modi ji has brought into the domain of public. See, this is the first time we are witnessing any Prime Minister who is trying to get connected the people to their home, to their houses. And particularly if I talk, I'm in Mumbai nowadays. Nowadays, from the beginning only. But in Mumbai, most of the people are talking either in Hindi or in English in their house with their kids and also the guests who are coming to visit them. But the first time our Prime Minister has brought an idea of vocal also, that we should connect with our mother tongue and local also. For example, I am from Karnataka. I belong to Karnataka, but I am from my childhood. I am in Mumbai. So from the day when I am connected with the Marathi language. So that has helped me a lot in growing fast in politics or whatever field I choose. So these two things are very much important, because we are getting disconnected with our own mother tongue. And when we get disconnected with our mother tongue, it means we are getting disconnecting with our community people, etc. So that also he has given a relief point. I think up to 5th, 6th, the students, small kids should get connected to their mother tongue. Most of the people of our country have welcomed this move, and I think this is one of the best move, I will say. And when we are talking about mother tongue, then vocal, local, which state you are residing or belonging, and at the same time, we should think about our national language also, which is Hindi. Now, regarding Hindi, there was a strong opposition from the South states, and let me make it very clear that I am also belonging from South. But in Karnataka, most of the people are connected with Hindi. They speak fluently Hindi, and those doesn't speak also, but they are not opposing Hindi like other states like Tamil Nadu, etc. But this time, Modi ji has brought a new idea, I will say. If you are a Keralian, you should be connected with Kerala, Malayalam. If you are a Tamilian, Chennai or Tamil Nadu, then you should be connected with Tamil. Like all the 4 Karnataka states, he has tried to connect the people. Then definitely
Hindi also you should get connected. Slowly, I think the people of entire country will get connected to Hindi language also. Now, Prime Minister has talked about Atmanirbhar also. Now, why we are talking about Atmanirbhar now? At the when we are facing a tough challenge in the Corona days, we are fighting with this epidemic, and slowly we are succeeding. Also, we have got a good big success, and now we are depending on China also. When we talk about China, say I'm a product of skill development. I will come to that part also slowly. Most of the things are coming from China to our country. In the beginning days, we thought that a thing, for example, a pen which is getting in India for 10 rupees, same type of pen we are getting in from China for 5 rupees. We started accepting that, but because of that cheap rate, it never came to our mind that the lakhs and crores of jobs are going away from India or from us. Now we slowly started stopped manufacturing. That's a big story, because I am coming from a labor family also, and I have myself started my career as a labor. I was riding 9 kilometers cycle from my house to the destiny where I was working. So I know that also. It was a big game, I will say, because now at present we are feeling and witnessing that slowly most of the in the factories strikes started, and slowly all the factories started becoming closed, slow down, etc. Actually, it was a modus operandi of the growing countries, I will say, which didn't come to the minds of our country's leader. And slowly we lost all the jobs, and entire we depended on China or other countries who are the manufacturers. Now, one thing we should take note, which Prime Minister Harsha that has brought to our mind and the people of our country, that we are the biggest market in the world. We are 130 crore people. We are the biggest market in the world. Whatever we manufacturing, we have the capacity to sell it also. So we should not depend on other who will buy, who will purchase this. So we are the biggest market in the world. So whatever we manufacture, we have the capacity of selling also. Now, slowly, or not only slowly, from the day one when Prime Minister took charge in the 2014, he talked about skill development. Now, what is the skill development? Now, each and every house in our country, all parents and all students, they are working hard. They are trying to get more and more marks in the school, 90, 95, 98. I feel that, and I wish 100% mark all the students should get. But my second question is that, what will do all the students if they get above 95, 98, 100% work? All the people are not going to get good jobs in the country or anywhere. So they should work also in the system, in the factories, and they should get good pay also. Someone should go to the manufacturing side also. Someone should be a set also, a owner of the factory, who is giving jobs to 100, 500, 1,000 people as per his capacity and the product which he is doing. So we should distribute in all the area. Our people should be in all the area. They should be officer also. He should be a manufacturer also. He should be a job seeker also. Then only our country will go, and all the peoples will get equal opportunities. What I will say, I'm trying to put it in a very short way. Now, I'm a product, as I told that I'm coming from skill development. I have started working from my school days also, because my parents were very poor. We were not affording to pay fees also, because we 4 brothers and 2 sisters were there. So when my elder sister got married, so my father has to leave job, and whatever the money he got from that job, he got my elder sister married. So after that, we were not able to pay school fee. So I left my school in the early days, and I started in a factory as an apprenticeship. I become a turner, I become a welder, fitter, die maker, and etc.
And I started my small unit as a Sainath engineering work, which I run for 35 years. Then after in my politics, the responsibility started increasing. A lot of burdens came on my head, and slowly I stopped my that small industry. Now I'm a full-time politician. So because of What skill was the development, turning point, if I ask? yeah. What Hello. was the turning point to join politics? Yeah, now I will talk why I joined politics. Because in the village where I was staying, I'm staying today also there only. My office is still there, but I shifted my residence half a kilometer from far out my office or early days where I was staying. Now the village in which where I was staying, we were not having tap water, we were not having electricity, we were not having toilet, we were not having small road also to walk. So in my uh, childhood days also, only at the age of 13, we formed a Yuak Mandal. I gathered some youth from that village. We started Ganpati Bappa Utsav, then Dhayandi and Satyanarayan Puja. These three occasions in a year we were celebrating. So we had a good group, and slowly we thought we should try to get all this facility to our village, which we are needing. So one day we approached to then MLA Ram Naik through his office. I fought with him. I had a hot argument with him. So I will thank him today. He took me very lightly. He made me to sit. He understand all my problems, and he told, "Don't worry, I will do something for you." And he gave one letter to me. I submitted it to the government office. That letter start working. First, we got toilet. And the person who introduced to me to Ram Naik, he was Hemendra Mehta. Then after that, he became MLA for 3 terms. So Ram Naik ji asked Hemendra Mehta, who is this guy? Who is this boy? He's talking so hardly, etc., etc. So Hemendra Mehta brought to his notice that he is having a group of 400, 500 youths in that village. He is doing good social worker, etc., etc. So Ram Naik asked Hemendra Mehta to bring him to our party. Hemendra Mehta took to my BJP office again, and at that time they printed 500 card of Bharatiya Janata Party for me. He appointed me as a general secretary of Borivali BJP. To finish that card, I started working in politics, and till today I am working. So in 1992, first time they offered me corporate ticket. So I was the first person to refuse and ask Ram Naik that it is not my bread butter. I am doing well in my field, so I don't want to contest any election. So Ram Naik asked me, what are the problems? So I brought it to his mind, 1, 2, 3, 4 problems which was going on in politics and in society, etc., etc. So he told me, at this age, if you are pointing on all these points, then you only has to contest these elections. So he made me to contest the election. First time the people voted me, second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time. Now this is the second election in a row I won, and always with the highest margin. I will say that I am a person who is contesting the election without spending any amount from my pocket. People help me, my party workers help me, and this is the way which I am doing my job. And from the day one, I am from morning when I get up and up to sleep, I am working for the people. That's why in Parliament also I have given 100% attendance throughout the 6 years. Whichever committee I'm working on, 3 committee. In that committee also, I have attended 100%. And not only this 6 years record, Varsha and Charushil, I will say, from the day 1992, in the 15 years as a corporator, only 2 absent, and that was also for some of the reason. So this is my track record. Can I move to the other point? Yes. What were the difficult decisions or the hard decisions that you had to make during your journey in politics? Hard decision. See, I will put it in this way, that my entire life is a hard decision. Life is a hard journey, not only for me, Varsha, but I will say for all.
those who have all the facilities, money, etc., etc. For them also, life is hard, and those who have nothing, for them also, it is a same, and it is going to be. Let me say, it is going to be. Now, if you talk about Donald Trump, also he's having a lot of problems. It is with everyone. But I have never cared for that because I am facing so much problem, a hard life I am living. So I should make money and I should change my lifestyle. That never came in my mind at any point of time. And today also my standard of living is very low, very simple. That's why I'm connected to the common people also, and I am outspoken. I try to solve each and everyone's problem. For me, a poor person is also same, and a multi-millionaire is also same. If he's coming to me with his problem, my priority is that I should solve his problem. What the other people thinks in politics, that I never mind. I take up his job, and I try to give him delivery. That is my passion, I will say. Let me talk about new education policy. Let us welcome that. Vaisha? Sure, sure. Yeah. Yes, sir. The new education policy which Prime Minister has introduced 2 days back, and he has elaborately put it to the minds of the people again by media. Now, after 72 years, this is the first time any Prime Minister has brought an education policy, and he has got connected to the people for whom he have brought. He had made it the every people get it, understand. Now, when we are connected to the global, now what other countries are doing, we have to follow that only. We have to compete with them. And then only we can stand in the market, and then only we can grow. Now, in education only, he has brought skill development. It was in my mind wherever I was going in schools program. I was from the day one talking about skill development, that it is in my mind. I will move a private member bill in parliament that after 7th or 8th standard, we should teach skill development to the children. But because history, geography, science, mathematics, this all that's also needed. But what the manufacturing sector, that also students should learn from the day one only, and it is very much easy if we train our students in the school days also only. Now, for example, if you want to manufacture this bottle, first of all you have to make a die, then this is the blow, then you need a blowing machine, etc., etc. So the people from the day only come to know. Now in China and Japan, their parents get them some toys. In our country, in our poor people in our country, if parents buy one toy, their first priority is that it should not be broken. It should be like that only for years and years. अगर बड़ा बच्चा इसको यूज करता है तो उसके बाद में छोटा भी उसको यूज करे, ये माँ बाप की एक सोच होती है. लेकिन चाइना और जापान में ऐसा नहीं होता है. कोई भी कॉस्टली खिलौना भी लाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं बच्चों के सामने और डाल देते हैं. एंड दे मेक द स्टूडेंट्स टू assemble it. They make the student to assemble it. So from the day only, people try to do something. So that is their idea. So through skill development from 6th standard only, our people will try to learn what is the manufacturing industry. For example, a guy who is getting a job in a factory as a supervisor. Now he has the knowledge of the product in the factory which he is working, what is manufacturing there, so he can become a good supervisor because he know what is this product, how is it is becoming, etc., etc., etc. And the people working under his supervision, they will get worried of him. अरे इसको तो सब मालूम है, इसको तो सारा पता है. So it will help a lot to the job seekers in the coming day. And again, if you want to enter to a manufacturing sector, then also it will help you. So in the day only, from 6th standard to, if you are becoming a double graduate also in the 7-8 years period, you will be a master of everything. You know what is what. Now, when we take a mobile in our hand, we are surprising. Wow,
इसमें कितना ये है वो है, हमारा पूरा दिमाग तो उसको स्टडी करने में ही चला जाता है। लेकिन यही बातें अगर आप बच्चों को पहले से ही 7-8 साल यानी 6 टू डबल ग्रेजुएशन तक उसके दिमाग में डालते हो कि मोबाइल क्या है, ये कैसे बनता है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। और हमारे देश के बच्चे हम इसके आगे और इनोवेटिव आइडिया क्या कर सकते हैं, इसमें मोबाइल में हम नई क्या चीज ला सकते हैं, उसके बारे में वो सोचेंगे। नहीं तो हमारा पूरा जीवन तो ये बनाने वाले ने कैसे बनाया, ये सोचने में पूरा चला जाता है। तो वी शुड बी वन स्टेप अहेड द अदर्स। तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर लोकल एंड वोकल की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये सारा करते करते आत्मनिर्भर की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी एक ताकत, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर। भारत एक ऐसा देश है कि हम पूरे दुनिया भर के लोगों की सुख की कामना करते हैं। हमारा कंपटीशन किसी देश को तबाह करना, किसी को बर्बाद करना, ये हमारा एजेंडा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया भर के लोग सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए। एक आज फ्रेंडशिप डे है तो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम कल्याण की जो परिवार की जो हम बात करते हैं, तो ये भारत देश है। तो हमको तो ग्रो करना है, हमको आत्मनिर्भर होना है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर, लेकिन साथ साथ में हम दुनिया के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। हमारा नॉलेज, हमारी जो उपलब्धियां है वो दुनिया के साथ में हम शेयर करेंगे। ये हमारा आइडिया है, ये हमारा आइडिया ये है। सारे जो एजुकेटेड यूथ हैं, ये पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सब जो एजुकेशन होकर आ रहे हैं उन्हें काफी दुविधाएं होती है, स्पेशली अगर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है। और काफी बार देखा गया है कि नेपोटिज्म इज समथिंग दैट प्रिवेल्स इन दिस फील्ड। तो जैसे आपने अपना खुद का रास्ता बनाया है, हम जैसे और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं आज, वो भी आपके जैसे लीडर कैसे बन सकते हैं? मैं इस तरह से इसको पुटअप करना चाहूंगा कि मोदी जी ने इसका अभी क्लास 2014 से ही स्टार्ट किया है। आज 2014 के पहले की अगर आप बात करेंगे या तो सोचेंगे, तो 2014 के पहले पॉलिटिक्स क्या है ये किसी को पता नहीं होता था। पॉलिटिशियन क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं होता था। आज 2014 से 2020 ये 6 साल में पॉलिटिक्स क्या है, पार्लियामेंट में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, हमारे कॉर्पोरेटर क्या करते हैं, फलाना मंत्री क्या करता है, वो डिलीवरी क्या करता है, ये सारी बातें आपको घर पे बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से जानने के लिए मिलता है। जानने के लिए नहीं मिलता है तो आप मन की बात में प्राइम मिनिस्टर को आपकी मन की बात पूछ सकते हो, उसका उत्तर आप पा सकते हो। इतनी बड़ी ताकत, इतनी एक अच्छी व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस सिस्टम में लाकर रखा है। हर व्यक्ति को लगता है कि ये देश मेरा है, ये देश के लिए मैंने कुछ करना चाहिए, और उसमें अगर एबिलिटी कैपेबिलिटी है तो वो जुड़ सकता है आसानी से पॉलिटिक्स में। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद का कोई नामो निशानी नहीं है। हमारे देश के बड़े नेता मोदी जी और अमित शाह जी ने धीरे धीरे सिस्टम में, और इन दिनों में नड्डा जी ने ये भी लाया कि एक परिवार का लकीली अगर 2 व्यक्ति है तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन 1 इज इनफ, बाकी नए लोगों को चांस दो। ये सिस्टम उन्होंने एडॉप्ट किया है। समाज में अच्छे अच्छे लोग कौन है, कैसे है, उसको ढूंढने का भी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे कि इन दिनों में जो मंत्रिमंडल केंद्र का बना है, उसमें आप बहुत बड़े पैमाने पे जो ब्यूरोक्रेसी में अच्छे ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेसी में जो अच्छे ऑफिसर्स थे, उनको डायरेक्ट पॉलिटिक्स में लाकर उनको मंत्री बना दिया है। जयशंकर जी की अगर मैं बात करूंगा तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स डिफेंस में थे, ही वाज ए फॉरेन सेक्रेटरी, और एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। आप सरप्राइज हो जाएंगे, साउथ से बिलोंग करते थे वो, और उनको पकड़कर उनको लाया उन्होंने, उनको मंत्री बना दिया। और आज कितना उनके वजह से सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि जो डिफेंस सेक्रेटरी करके उन्होंने जो काम किया, डिफेंस सिस्टम को जाना, पूरे दुनिया को जाना, उसका डायरेक्टली लाभ आज सरकार को मिल रहा है। आप किसी एक व्यक्ति को डायरेक्ट वो एमपी बन गया है इसलिए अगर मंत्री बनाते हो तो वो भी काम करेगा, वो नहीं करेगा ऐसा नहीं, लेकिन इनका इतने लंबे समय का जो तजुर्बा है वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम को मिलता है। ऐसे बहुत सारे मंत्रियों का नाम मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि जिनको बहुत उत्सुकता होती है मंत्री बनने के लिए और वो ऐसे बनते नहीं है, तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो मैं उस विषय पे बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। तो मोदी जी का ये प्रोसेस भी चालू है, भिन्न भिन्न समाज में से लोगों को ढूंढकर लाकर उनके काबिलियत के हिसाब से उनको काम देना और उनका नॉलेज का लाभ
देश को और सिस्टम को कैसे हो, ये ऑटोमेटिकली चालू हुआ है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वर्षा, उसी में इसका उत्तर है कि लोग पॉलिटिक्स में कैसे आए। क्योंकि एक समय ऐसा था कि लोग पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते थे। पॉलिटिक्स यानी वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते थे कि अगर मेरा पिताजी भी अगर पॉलिटिक्स में है, तो मुझे कहते हुए शर्म होती थी कि मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में है करके। क्योंकि पॉलिटिक्स इतना गंदी हो चुकी थी और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और बाकी सारे नेताओं ने मिलकर पॉलिटिक्स को 6 साल में बहुत साफ-सुथरा कर दिया है। पॉलिटिक्स को लोग अपनाने लगे हैं। इस प्रकार की आज स्थिति हमारे देश में हुई है, हर्षा। सारे युवा जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो अगर आपके साथ काम करना चाहें तो किस माध्यम से आप आपके पास पहुंच सकते हैं? देखिए, मेरे मतदार संघ के युवा बड़े पैमाने पे मेरे साथ में जुड़े हैं। मेरी जो लोकप्रियता है, तो उसका कारण ही ये है कि युवा मेरे साथ में बड़े पैमाने पे जुड़े हैं। मेरे साथ में अभी पिछला इलेक्शन जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया, फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री ने चुनाव लड़ा, उर्मिला मातोंडकर जी ने। मैं उनका सम्मान करता हूँ। उसके बावजूद भी मैं गत बार से भी ज़्यादा वोटों से मैं जीत पाया, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो जीत जाते हैं। जब मेरे पार्टी से जीतते हैं तो वो अच्छे हैं और मेरे बाकी पार्टी से कोई नहीं जीतता है तो वो खराब है। इस मेंटालिटी का और इस सोच का मैं नहीं हूँ। शी वाज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड उसकी उनके जितने भी हम लोगों ने स्पीच वगैरह सुनी तो बहुत ही अच्छा उनका आउटपुट भी था। लेकिन मेरे साथ में यूथ्स और सारे समाज के लोग जुड़े हुए रहने की वजह से और मैं पूरा जीवन लोगों के साथ में जुड़ा रहा, इसलिए इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। अब अदर देन माय इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पॉलिटिक्स से रुचि रखते हैं, वो मेरा एक्टिविटी फेसबुक के माध्यम से पार्लियामेंट में मैं क्या करता हूँ, उसके माध्यम से लोग जुड़े हुए रहते हैं। कभी कोई व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर बातचीत करता है तो मैं तुरंत उनसे बात भी करता हूँ। कोई मैसेज आया तो उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो ये एक माध्यम हो सकता है जुड़े रहने का। और फिर तीसरा जो आप आज कर रही हो, मैं मानता हूँ कि हर 3-6 महीने वो इस प्रकार का एक इंटरेक्शन करेंगे तो मैं लोगों को जान पाऊंगा, लोग मुझे जान पाएंगे। दिस इज द वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू द पीपल एट लार्ज। अच्छा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। आप आपके एरिया में सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी के प्राइम प्रोजेक्ट कौन से हैं? हम ये जानते हैं कि आपने लेटली कोरोना के टाइम पे काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। आपसे सुनना अच्छा लगेगा। सीएसआर एक बहुत बड़ी ताकत देश में 2014 अगेन आई विल से 2014 में इस बात को भी थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि 2014 के पहले कुछ भी नहीं हुआ ऐसा मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन 2014 के बाद में हमने एक लॉन्ग जंप ली है और सीएसआर का भी पैसा पूरा सिस्टम में आए, इसका एक मैकेनिज्म मोदी जी ने बना दिया। नहीं तो पहले बड़े बड़े कंपनी के लोग जो प्रॉफिट का 2% शेयर एक ट्रस्ट बनाकर वो ट्रस्ट में पैसे डालते थे, फिर वो पैसे कोई हिल एरिया में होटल वगैरह बनाकर अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए जाना आने का एक जगह, एक जरिया उन्होंने बनाया था। अब मोदी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आपको पब्लिक डोमेन में इस पैसे को उपयोग करना पड़ेगा और लोगों ने उसको उपयोग करना प्रारंभ किया है। लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं अभी तक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ में जुड़ा नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल ये याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में एक टाटा कंपनी के लोगों ने एक स्कूल में कंप्यूटर्स वगैरह दिया था, तो उसमें भी कंडीशन था कि एमपी के हाथों से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करो ताकि गवर्नमेंट तक उसका मैसेज पहुंचे। तो इस प्रकार की 2-4 कार्यक्रम बड़े लोगों ने किया होगा, उतना ही। बाकी को मैं सीएसआर का फंड लाकर मेरे मतदार संघ में कोई मैंने डेवलपमेंट का काम किया है ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक अलग सीएसआर का जरिया ढूंढा है, लोगों के लिए लोगों से मदद लेकर प्रोजेक्ट को खड़ा करना। फॉर एग्जांपल पोईसर जिमखाना जहां पर मैं अभी बैठा हूँ, ये मैंने चालू किया कि क्लब का मेंबर बनने के लिए उन दिनों में मुंबई शहर में 1-2 लाख रुपया, उन दिनों में 20 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो रुपये लगते थे। तो पब्लिक के पास, सामान्य आदमी के पास इतना पैसा होता नहीं था। तो मैंने खेल खेल में एक पोईसर जिमखाना बनाई जिसमें 5,000 रुपए से मेंबरशिप स्टार्ट किया, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब लोगों को आश्चर्य लगा कि 5,000 रुपए में कोई क्लब बनता है क्या? तो मेंबर बहुत कम बने। फिर लोगों ने मुझे आइडिया दी कि आप रेट बढ़ाइए, तो मैंने डरते डरते 10,000 रुपये इसका किया तो 2-3 हजार मेंबर बन गए। फिर मैंने 15,000 किया तो और 2-3 हजार लोग आ गए। फिर मैंने 25,000 किया तो फिर लाइन लगने लग गई। मैंने एक 9,000 मेंबर
इकट्ठा करके पैसे जिमखाना का कामकाज चालू किया। हर्षा, यू विल बी सरप्राइज टू नो 11 एकड़ की जमीन को हमने विकसित करके आज लोग उसमें बहुत ही अच्छी तरह से सारी सुविधा लेते हैं। फिर यही मॉडल को हमने वीर सावरकर में कन्वर्ट किया। वहां मैंने 15,000 रुपया 2,000 लोगों से लेकर 3 करोड़ रुपया मैंने इकट्ठा किया और पोईसर जिमखाना से 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर 4 करोड़ प्लस में 7 एकड़ का प्लॉट मैंने डेवलप किया। और ये 2 प्रोजेक्ट सिर्फ पब्लिक के पैसे लेकर हमने डेवलप किए। उसके बाद में मैंने एमपी फंड में से बड़े बड़े पैगार और सारे जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए सारे राष्ट्र पुरुषों के नाम पर किया। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज किया, मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर किया, मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर किया। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर प्रोग्राम करते गया। तो हर्षा, आप जैसे एक लेडी ने मुझे एक दिन एक प्रोग्राम में खड़ा करके पूछ लिया, क्या साहब आपको ये लगता है कि देश के आजादी में सब पुरुषों का ही काम है, महिलाओं का कोई काम नहीं है क्या? तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि बहन ने इस तरह का सवाल मुझसे पूछा। तो तुरंत मैंने उस बहन को जवाब दिया कि बहन, इसके आगे का जो भी मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो वो महिला के नाम से करूंगा। और मैंने 4.5 एकड़ के नाम पर झांसी की रानी मैंने बनाई और उसको मैंने झांसी का रानी नाम दिया। और इस प्रकार का सारा प्रोजेक्ट करते बोरेली आज एक ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने बोरेली में लाई। और आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर, गए साल में महाबलेश्वर का टेम्परेचर 14 डिग्री था और हमारा बोरीवली का टेम्परेचर 13 डिग्री था। ये अगर आप काम करते हो तो उसमें से ताकत खड़ी होती है। तो जनता के पास से पैसे लो, जनता के लिए दो। अब ये कोरोना महामारी का आपने विषय को छेड़ा, तो पावन धाम जैन धर्मगुरु नम्रमुनि गुरुदेव जी के नाम पर चलता है। तो वो मेरे साथ में कनेक्टेड है, मेरे साथ में सभी समाज के लोग कनेक्टेड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि गोपाल भाई इस जगह का उपयोग करो, कोई काम में अगर लोगों का आता है तो मैंने सारे डॉक्टरों को बुलाई, मैंने कुछ सोशल वर्कर को बुलाई और साथ में हम लोगों ने एक मीटिंग करके हमने पावन धाम में कोरोना आइसोलेशन सेंटर स्टार्ट करने का सोचा। बट टुडे इट इज नॉट आइसोलेशन सेंटर, इट इज जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल। हमने 550 पर्सन्स को घर में अच्छा करके उनको भेज दिया है। मैंने पोईसर जिमखाना से 70 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर करके सारी मशीनरी हम लोगों ने परचेज की। इट इज 100 बेडेड हॉस्पिटल टुडे। और हमने सिर्फ लोगों के पास से 1,000 रुपया लेना तय किया। अब उनका सिर्फ कॉस्टिंग ही पर डे 3,500 रुपया आता था, लेकिन बाकी एक निर्मया फाउंडेशन, हमारे पराग शाह एमएलए करके उन्होंने 1,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया। ऐसा करके हमने 1 महीना इस सिस्टम को चलाया और फिर दूसरे महीने से हमने 1,000 रुपीज प्लस पैथोलॉजी चार्ज और जो दवाइयां लानी पड़ेगी दैट दे हैव टू स्पेंड एंड पीपल आर पेइंग वेरी इजीली। एंड हर्षा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आउट ऑफ 100 99.9% लोग अच्छे होकर चले गए। सिर्फ 4 पेशेंट को हमको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और उसमें से भी 2 अच्छे होकर चले गए। इतने अच्छी तरह से ये पावन धाम का हमारा सेंटर आज भी चल रहा है। आज भी रोज 30-40 लोगों का वेटिंग चल रहा है। यानी मेरा एक स्वभाव बचपन से ही बना है, लोगों के लिए, लोगों के पास से मदद लो और लोगों के लिए करो। और एक मेरा वाक्य है हमेशा, आप मुझे 1 रुपया दीजिए, मैं आपको 1.25 रुपए का हिसाब दूंगा। अब लोग पूछते हैं साहब 1 रुपया देकर 1.25 रुपए का हिसाब कैसे आप दोगे? तो जो आपसे मैं 1 रुपया लेता हूँ पूरा का पूरा वो प्रोजेक्ट में खर्चा करूंगा और 25 पैसे का जो मजूरी होता है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करूंगा, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो इसलिए आपका 1 रुपए का 1.25 रुपया बनाकर देने की जवाबदारी मेरी। दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग, आई विल से। So that's the work that you're doing is highly commendable. और अगर हम पर्सनली मिल रहे होते और संगठन में मिल रहे होते तो जरूर काफी तालियां बजती इस पे। थैंक यू। आप इतना सारा काम कर रहे हैं, वो एक कॉज क्या है जो आपके दिल के करीब है और आप क्या पॉलिटिकल लेगेसी छोड़कर जाना चाहेंगे? देखिए, कॉज की अगर मैं बात करूंगा तो कॉज हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। अब मैं बात कर रहा हूं लेकिन मुझे बात करने आप लगा रही हो तो आपका भी एक कॉज है कि जैसा गोपाल शेट्टी बना है वैसे अन्य लोग भी बने। आज मोदी जी बनने का सपना सब लोग देख रहे हैं। तो ये एक कॉज हो गया ना कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतना नाम कमा रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। ये कॉज तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है और
लोग जुट जाते हैं। जब जैसे कि आजादी की बातें हम लोग सुनते हैं कि आजादी के दिनों में लोगों ने ये किया वो किया, और हमारे मन में तुरंत ये बात आता है कि इन्होंने ये किया इसलिए हम आज ये सुख भोग रहे हैं। तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य ये देश के समाज के लिए करना। और ये ऑटोमेटिकली आप जैसे जब करते जाते हो, तो हमारा भारतीय समाज इतना अच्छा समाज है। अगर आप इतना करते हो तो आपको इतना लोग देते हैं। ये हमारे देश के लोगों की बहुत बड़ी खूबी है। तो आपको फिर ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है। आज कल सवेरे आप अपने लिए नहीं उठते हो, आप अन्य लोगों के लिए उठते हो। आपको उठना ही पड़ता है। आपने किसी को 9 बजे का समय दिया तो आपको 9 बजे वहां पर पहुंचना ही पड़ता है, क्योंकि आपका एक स्वभाव भी जो है वो आपको लगता है कि मैंने बनाया है। नहीं, ये आप अपना स्वभाव जो है ये भी और लोग बनाते हैं। जैसे मुझे आपके इंटरेक्शन के लिए आज 5 बजे आना था, तो जब मैं आ रहा हूं तो आपको भी आना था, तो आप मेरे से पहले आ गई। तो ये हम एक दूसरे को बनाते हैं। तो ये कॉज हर व्यक्ति के जीवन में जीवन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे साथ अभी लौकिक जी हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं लौकिक, मैं बोरीवली रहता हूँ। ओके। मेरा एक क्वेश्चन था प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट के रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसे अपने बोरीवली, कांदीवली, मलाड, मुंबई में काफी सोसाइटी है जी हाँ, जैसे जहाँ का ओसी और कन्वेंस पास नहीं हुआ है, जो 30 साल 40 साल जूनी बिल्डिंग है। जी हाँ, तो हमारी भी एक ऐसी बिल्डिंग है बोरीवली जी में, सोडावाला लेन में रहता हूँ। तो जी हाँ, वहाँ पे उसी का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ। देखिए, मेरा एक स्वभाव रहा है बचपन से ही काम करने का। मैं कोर्ट में किसी हेलो, साइड से लौकिक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपके मुद्दे को समझ लिया, क्योंकि मेरा इसमें बहुत बड़ा एक लंबा अनुभव रहा है ऑक्यूपेशन और कन्वेंस के बारे में और रिडेवलपमेंट के बारे में। देखिए, वन शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल। अब डीम कन्वेंस के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारा सुधारा कर दिया है, और डीम कन्वेंस इन दिनों में आसानी से मिलता है। अब ये डीम कन्वेंस में पहला एक कंडीशन था कि आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो मैंने बहुत संघर्ष करके, क्योंकि मैं कॉर्पोरेशन में 15 साल काम किया कॉर्पोरेटर के रूप में, तो मेरा डीम कन्वेंस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज नथिंग टू डू विद कन्वेंस। कन्वेंस इज ए पार्ट ऑफ ए लैंड विच वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू अनदर। एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर आप जमीन ट्रांसफर करते हो। अगर आप आज कोई जमीन लेते हो तो जरूरी नहीं उसके पर आपने बिल्डिंग बनाना ही चाहिए। आप जमीन भी, एक व्यक्ति का जमीन दूसरे के नाम पर कन्वेंस कर सकते हो, करना चाहिए आपको, होता है। तो ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का कोई मायना नहीं है। तो फिर बहुत संघर्ष करने के बाद में मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछली सरकार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का कंडीशन निकाल दिया। उसके साथ साथ में बहुत सारे जो कॉम्प्लाइंस पूरे करने पड़ते थे, वो सारे जो अनवांटेड कॉम्प्लाइंस थे वो सारे निकाले गए, और अब डीम कन्वेंस बहुत आसान हो गया है। एक ही सिर्फ बचा है उसमें, अगर कोई पहले का डेवलपर का एफएसआई बाकी है, कोई पेमेंट लेना देना एक दूसरे के साथ में बाकी है, तो वो कन्वेंस आसानी से होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वन शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल। और कुछ बड़े लेआउट होते हैं। अब लेआउट में 20 बिल्डिंग है तो 20 बिल्डिंग के लोग साथ में आते नहीं है। वो कहते हैं कि हमको हमारा अलग करके दे दो। जैसे एक घर में 4 भाई साथ में रहना नहीं चाहता है, वैसे सब अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग होने का लाभ और नुकसान भी ये पिछले कुछ दशकों में लोगों ने देख लिया। फिर वापस एक परिवार के तरफ लोग मुड़ रहे। इसलिए बड़ा लेआउट अगर है तो उसमें फिर डीम कन्वेंस इतना आसानी से होता नहीं कि सब लोगों ने मिलकर लेना है, एक को होता नहीं है। अब कोई बुद्धिमान सुनता होगा तो वो आपको कहेगा कि नहीं, एक आदमी का भी होता है। एक आदमी का होता है, लेकिन फिर आपका बिल्डिंग डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि एफएसआई कैलकुलेशन, ओपन स्पेसेस, ये सारे उसमें 10 झमेले होते हैं। तो मैं लोगों को बहुत आसानी से समझाता हूँ। देखिए, आपका 500 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट है तो नए रूल के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा जमीन के साथ में अबाउट 600 कोई भी आज बिल्डर आपको आसानी से दे देता है। आपका जूना फ्लैट नया बन जाता है, आपका एरिया बढ़ जाता है, और आपको 2 साल का मिनिमम, जो भी 3 साल लगता है तो 3 साल, अगर 2 साल में इन दिनों में बिल्डिंग बन जाती है, अगर बिल्डर अच्छा है तो आपको उसका भाड़ा भी मिल जाता है। तो सब आपको तो खोना कुछ नहीं है, आपको तो पाना ही है। लेकिन बीच का एक समय ऐसा आ गया, कुछ बोगस गलत बिल्डर लोग आ गए सिस्टम में, कोई 40% देने लग गया, कोई 45% देने लग गया, और लोग उससे और ज्यादा दौड़ने लग गए। और ऐसे बिल्डरों ने जिनके साथ में भी व्यवहार किया, सौदा किया, सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग। इसलिए लालच बुरी चीज होती है। हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में सिखाया है
तो लालच में से बाहर आना चाहिए। हमारा जो है उससे ज्यादा मिलता है। डेवलपर अगर अच्छा है, देखिए शादी भी जब किसी के घर में हम करते हैं तो माँ बाप खानदान किस तरह का है वो देखते हैं। बच्ची जाएगी घर में तो खा पी के तो सुखी रहेगी, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। वैसे जब हमारा जीवन का पूरा पूंजी लगाकर जो हमने फ्लैट बनाया है तो खानदान बिल्डर का क्या है वो देखना जरूरी है। बिल्डर अगर अच्छा है तो 2% कम भी देता है तो वी शुड गो विथ हिम एंड गेट थिंग्स डन। आप बोरेली में रहते हो इसलिए बहुत आसानी से आप मुझे मिल पाओगे। आप मेरे पास आइए, मैं आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। मिस्टर OS के रेड्डी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपका हाथ ऊपर है। यस रेड्डी जी। ओके, चारुलता, आपके पास कुछ सवाल थे? चारुलता? Yes, ma'am. Yes. Good evening, Please, sir. I'm Charulata, and my question is, if you had been given the responsibility of economy boost, so what would be your plan of action, considering the current situation? चारुलता जी, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। लोग बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि इतना साल लगेगा, उतना साल लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी इकोनॉमी फास्ट ट्रैक पर बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। देखिए जीवन में हर एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो हमसे कुछ लेता भी है और हमको कुछ देता भी है, हमको सीखने के लिए भी मिलता है। तो ये कोरोना ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। जो भी व्यक्ति मेरे आवाज को सुन रहे हैं, ये 4 महीने के कोरोना में हमको खिसे में बहुत कम समय पर हाथ डालना पड़ा है। हमको खिसे में बहुत कम समय पर हाथ डालना पड़ा और घर में भी जो खर्चा है वो बहुत कम है। इस बात का एहसास हमको ये कोरोना ने करके दिया है। तो मैं मानता हूं कि आफ्टर कोरोना हर व्यक्ति का एक जीवन शैली बदल जाएगी, उसका लाइफस्टाइल बदलेगा। और कोरोना के वजह से जो देश के प्रधानमंत्री और देश के जो चालक है वो एक दूसरे देश के साथ में जूझते थे, संघर्ष करते थे अपने देश को ऊपर लाने के लिए। लेकिन ये कोरोना ने देश के हर नागरिक को शायद ये सिखाया होगा कि मेरे देश को आगे लाने में, मेरे देश को और बड़ा करने में, मेरे देश को दुनिया के सिनेरियो में लाके खड़ा करने में मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए है। इस बात का एहसास देश के हर नागरिक को हुआ है। जो गड़बड़ घोटाले करते थे वो सारे सिस्टम से 6 साल में मोदी जी ने चाबुक मार मार के बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। जो कुछ थोड़े कम बचे थे वो ये कोरोना में ठीक ठाक हो गए। और मैं मानता हूं कि आफ्टर कोरोना का जीवन एक साफ सुथरा जीवन हम सबको जीने के लिए मिलेगा। और हर व्यक्ति अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है, अपना जो भी डिलीवरी है वो अप टू द मार्क देने का प्रयास करेगा और बहुत तेजी से हम आगे जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि हम पहले से भी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। अब स्वाभाविक है जो कुछ समय हमको संघर्ष करते हुए खड़ा होना पड़ेगा वो स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि एवरीवन शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल। अब ये 4 महीने में मुझे किसने क्या दिया, मुझे किसने क्या नहीं दिया, वो पाने में अगर आप 1-2 महीना और बिगाड़ते हो तो स्वाभाविक है, तो फिर उतना हम पीछे चले जाएंगे। हर व्यक्ति ने एक दूसरे की मजबूरी को, एक दूसरे की प्रैक्टिकल को जान लेने की आवश्यकता है। ये बात मैंने कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं जानता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, देश का जो चालक उसने कह दिया किसी को भी जॉब में से मत निकालिए, किसी का भी तनख्वाह मत दीजिए। अब किसी को ये पता नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा करके, लेकिन लॉकडाउन इतना लंबा चल गया। अब लॉकडाउन इतना लंबा चलने के बाद में स्कूल के जो चालक है उनको जितना इनकम आना चाहिए था उतना आया नहीं। उसका आउटगोइंग तो सब अगर चालू है तो वो तो चला नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमको सोच समझकर बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हर रास्ता सरकार ने ही निकालना चाहिए, ये अपेक्षा में लोगों ने रहना नहीं चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं वो हमारी है, मेरी है, मेरे बाद में मेरे बच्चों को भी यहाँ पर जॉब मिले, इस प्रकार की सोच को लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आफ्टर ऑल देखिए, हम भारत देश के बारे में बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि वी आर वन फैमिली, हम एक फैमिली है। तो एक फैमिली के मोड में हम सबको आना पड़ेगा
तो मैं मानता हूं कि बहुत आसानी से हम इस संकट से बाहर निकलेंगे और बहुत आसानी से हम पहले का जीडीपी को मैच करके उससे आगे जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति में बहुत जल्दी हम आएंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ प्रांजल है भोपाल से, वो आपसे सवाल करना चाहेंगी। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो एनईपी को लेकर है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है नई, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिसी है। मेरा बस एक सवाल है दैट हम ये कैसे इंश्योर करेंगे दैट हाउ विल बी इंश्योर कि इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है वो ही फोर्सफुली उनको ये जो फंक्शनल जॉब्स आपने बोले कि जो ट्रेनिंग है वो सारे दे आर इनटू इट, तो मतलब इसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, इंश्योर करना ये अपने हाथ में है और मैं मानता हूं कि अपने हाथ की जब मैं बात करता हूं तो देश को जो चलाते हैं उनके भी हाथ में है। आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समझो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, खुलने लगेगा, तो लोगों की उसमें रुचि पैदा होने लगेगा। तो हर व्यक्ति को लगेगा कि चलो मैं भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट करूं, मैं अपने पैर पे खड़े हो जाऊं, मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यू शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, यू शुड बी अ जॉब गिवर। आप 2, 5, 10 लोगों को जॉब दो, इस प्रकार की स्थिति में आपने आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, हम जो भी बनाएंगे बेचने की क्षमता हमारे देश में ही है, तो बनने लगेगा, बिकने लगेगा, खरीदार हमारे पास है, तो कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में हुआ क्या कि सारे इंडस्ट्री को मोनोपोली लोगों ने कर लिया, अपने हाथ में लोगों ने कर लिया। जो प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है कि नहीं ये सबके हाथ में जाना चाहिए, तो इसका सारा बेस बन रहा है, इसकी सारी व्यवस्थाएं हो रही है। लोगों ने थोड़ा सिस्टम के ऊपर विश्वास करना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि ये आसानी से हो जाएगा। अब एक 4-5 साल के पहले स्किल डेवलपमेंट क्या है ये किसी के दिमाग में भी नहीं था, व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट करके। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 2014 में पार्लियामेंट में गया तो रूडी जी इन दिनों में स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, तो मैं उनको मिलने गया क्योंकि मेरा हॉबी था। तो मेरा एक सोच था कि मैं मेरे मतदार संघ में स्किल डेवलपमेंट का काम बड़े पैमाने पे खड़ा करूं, और मैंने खड़ा किया भी है। मैं उसको और आगे ले जाना चाहता हूँ। तो उनके एक कुछ लोगों के साथ में मीटिंग हो रही थी, और वो मीटिंग ऐसे लोगों के साथ में हो रही थी, ये जो मोटर मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए लोग थे। अब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोगों को अपने देश में जो सोफिस्टिकेटेड वेल्डिंग जो होता है वो वेल्डर मिलते नहीं है, अपने देश में नहीं है, तो उनको विदेश में से लाना पड़ता था। और 2500 लोगों ने विदेश में से वीजा के लिए अप्लाई किया था। अब मोदी जी ने अगर उनको 2500 लोगों को वीजा दिया होता तो तुरंत हमारे देश में आकर ये सारे जॉब को उन्होंने कब्जा किया होता। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, पगार मिनिमम 50,000 से 1.25 लाख रुपया तक एक व्यक्ति को पगार था। मिनिमम 50,000 टू 1.25 लाख, यानी सिर्फ आप वेल्डिंग का एक सोफिस्टिकेटेड वेल्डिंग को आप सीख जाते हो तो आपको इतना बड़ा पगार मिलता है, और जॉब आपके दरवाजे पर आके खड़ा है कि आइए आप हमारे पास करिए। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा बच्चा 98% मार्क लाए, वो टाई लगाए, वो कोट पहने और एक ऑफिस में जाकर काम करे। अब ये तो संभव नहीं है ना, ये तो संभव ही नहीं है। आपको वहां पर 1.5 लाख रुपए पगार मिलेगा, लेकिन आप एक छोटी सी फैक्ट्री बनाकर भी अगर आप खड़े होते हो तो आप महीने में हो सकता है कि 2-5 लाख रुपया कमा सकते हो, आपको एक अलग स्टेटस मिलता है। तो ये सारा हमको करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ये होगा। अब ये सारे जो चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर 10 बातों के ऊपर मोदी जी ने बैन डाला है, आने वाले दिनों में और भी सब होगा। और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का द्वार हम खोलेंगे, बैंक के लोगों को भी ठीक ठाक किया है, सामान्य लोगों को बैंक में से लोन आसानी से मिले, इसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैं मानता हूं कि थोड़ा हर व्यक्ति ने थोड़ा संघर्ष भी करना सीखना पड़ेगा। अगर बैंक आप सारे मेरिट में बैठते हो, बैंक वाला आपको लोन नहीं देता है, मदद नहीं करता है, आप आपके एमएलए के दरवाजे पे जाइए, उनका मदद दीजिए, आप अपने एमपी के दरवाजे पर जाइए, उनका मदद लीजिए, उनको कहिए चलिए मेरे साथ में, बैंक वाला मुझे लोन क्यों नहीं देता है। ये मोड़ पर हम सबको आना पड़ेगा। हम एक दूसरे का जो सिस्टम का जो लाभ लेना है वो लेते नहीं है, तो ये आप लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आप हर चीज को बहुत आसानी से कर पाओगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर के उपाध्याय हैं दिल्ली से। डॉक्टर उपाध्याय। सबसे पहले तो गोपाल जी आपको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। आपके काम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
जी हाँ, आपने जो ₹1.25 की बात की, जी हाँ, वो हम अमूल या दूसरे के माध्यम से शुरू से लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं जी हाँ, कि अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन में लोगों को सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी हाँ, वो आप और आपकी सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है। जी हाँ, जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जी हाँ, तो इसमें एक व्यक्ति के तौर पे एक व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए कि वो इस परिवर्तन का भागीदार बन सके? जी हाँ। आत्मनिर्भर को आप डायरेक्ट वापस फिर एक बार स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दीजिए। आप एक बार आपकी पढ़ाई पूरा करने के बाद में आप सरकार मुझे नौकरी कब देगी, आप ये चक्कर मारने का शुरू करने से आप आत्मनिर्भर हो जाइए। आपके जो भी एक प्रोडक्ट में आपकी रुचि होगी, जिसका मार्केट में बहुत डिमांड है, जो बिकता है, ऐसे कोई फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। और आप आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि यू शुड बी ए मैन्युफैक्चरर, और आपको किसी के भी दरवाजे पे जाके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपके दरवाजे पे आएंगे। तो दैट इज आत्मनिर्भर। अब ये आपको मैं बता ये राफेल आया, आज के हमारे टॉपिक में राफेल भी था, लेकिन उसके बारे में मैंने कुछ प्रकाश में डाला नहीं, और चारू, लता जी और हर्षा ने उसको छेड़ा भी नहीं है। अब ये राफेल हमने लाया, अब इसके बाद में कोई पॉलिटिकल एंगल में मैं ले जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा लेके जाना भी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चाइना के साथ में जब उनकी सत्ता थी तो किस प्रकार का एक छुपा एग्रीमेंट किया था, जिसका किसी को कोई अधिकार नहीं होता है करने का, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किया। अब ये करने के पीछे का मकसद और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, ये सिर्फ आप राफेल को थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि राफेल आने से हमारी देश की ताकत बड़ी हो गई, हमारे दुश्मन देश के लोगों का निगाह हमारे और देखने का एक अलग होगा। इसलिए कांग्रेस की जो कंपनी थी वो चाहती थी कि राफेल हमारे देश में आए नहीं, राफेल हम परचेस ही नहीं करें, क्योंकि उनका जब सत्ता था तो उन्होंने परचेस ही नहीं किया। व्हाई दे डिडंट परचेस? बिकॉज दे वांटिंग टू फेवर चाइना, उनको चाइना को सपोर्ट करना था, इसलिए उन्होंने परचेस नहीं किया। अब मोदी जी ने परचेस करने का निर्णय किया तो चौकीदार चोर है करके उसके ऊपर आरोप लगाया, 10 बातें उन्होंने की। हम सब लोगों ने मिलकर मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय किया, अपने आप पर सारे इल्जाम लिए, गालियां खाई जितना चाहिए उतना, लेकिन उन्होंने वो बैकफुट पर नहीं गए। राफेल उन्होंने सौदा किया, आज हमारे देश में 5 राफेल आया है। अब ये राफेल क्या ताकत आपको दिखाता है आने वाले दिनों में, देखिए। अब मोदी जी देखिए परचेस तो करते हैं, लेकिन मोदी जी कितने सक्षम है, सारे दुनिया के देश के लोग उनके संबंध तो प्रस्तापित करते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं। हम आने वाले दिनों में राफेल भी भारत में बनाएंगे। ये आत्मनिर्भर देश के प्रधानमंत्री का सपना है, ये आत्मनिर्भर डिफेंस मिनिस्ट्री का सपना है, क्योंकि आज हम डिफेंस के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे पैसा खर्चा करते हैं। ये सारा पैसा अपना देश का पैसा अपने देश में रहेगा, अपना पैसा भी यहाँ पर खर्चा होगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ होगा तो बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज दुनिया भर के देश के लोग, अमेरिका क्या करता है साहब, अमेरिका 1 रुपए का चीज लोगों के पास से बनवा कर लेता है और वो 100 रुपए में बेचता है, वो कुछ नहीं करता है। 99 रुपीज प्रॉफिट वो घर पे बैठकर आराम से कमाता है, घूमता है, फिरते हैं, मजा करते हैं। वी आर द सफरर। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, हमको आत्मनिर्भर आने वाले दिनों में बनना पड़ेगा। थैंक यू। सर हमारे साथ राहुल गांधी जी भी हैं आज। कौन सा गांधी है? राहुल गांधी जी हैं ओके। दिल्ली से। राहुल नमस्कार आप सर। आएंगे? सर ये मेरा नाम है ना, ऐसे इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा अपना। ओके ओके, बट कोई ऐसी बात नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं, राहुल एक अच्छा नाम है, क्वेश्चन है सर। राहुल इज अ गुड नेम। राहुल बजाज ने देश को कितना आगे ले गया हम सब लोग देखते हैं। राहुल Yes, इज नॉट अ बैड नेम, लेकिन sir. राहुल नाम का महत्व लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको राहुल का महत्व समझा होगा। आई कंसिडर यू एज अ गुड गाय। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि Yeah. सर तो जो मोदी जी का दूसरे कार्यकाल है, जिसको हम मोदी 2.0 भी बोलते हैं, या उसमें सर अभी तक क्या आपको ऐसा लगता है कि उपलब्धियां हैं, और आगे जो 4 साल बाकी हैं या उसमें क्या ऐसी सोच है कि जो और आगे बदलाव की तरफ ले जाएगी हमारे देश को? तो दूसरा सर ये है कि जैसे हमने अभी एजुकेशन पॉलिसीज चेंज करी हैं या और हम स्किल इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो क्या सर हम लोग को अपने यूथ को वेल्थ क्रिएशन के बारे में समझाना ज्यादा जरूरी नहीं है? क्योंकि आज का यूथ इनकम क्रिएशन की तरफ ज्यादा जाता है, या वेल्थ क्रिएशन का उनको मतलब कम पता है। उनको लगता है कि हम इतना पैसा कमा के क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे।
तो बेटर है कि हम 9 to 5 एक जॉब लें और उसी में ही चलते रहें। जी हाँ। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन और इनकम क्रिएशन के का डिफरेंस हमारे को अपने स्टूडेंट्स को जरूर समझाना चाहिए सर। बहुत अच्छा मुद्दा है राहुल जी आपका, और मैं इसको एमएसएमई के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे देश में। एक तो हमारे देश के लोगों का स्वभाव पिछले दशकों में सरकार चलाने वाले लोगों ने इस प्रकार का कर दिया कि हम मेहनत थोड़ा करें और हमारी आमदनी ज्यादा हो। मैक्सिमम लोग शेयर बाजार की ओर मुड़ गए। आसानी से पैसा बनता भी है, मिलता भी है, लेकिन डूब भी जाते हैं। कुछ लोग कमाते हैं, लेकिन सारे लोगों का खून चूसना जैसा एक काम है, ऐसा मैं स्वयं मानता हूं। इसलिए इजी मनी कैसे आए वो न देखते हुए, ऐसा एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपका पैसा सिक्योर है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब इट इज वेरी मच सिंपल, हम भारत इंडियन कल्चर के लोगों को अगर बहुत कोई आसानी से भी कोई चीज मिलता है तो हम लोग लेते हैं। बचपन में हमको सिखाया गया, अगर कोई रिश्तेदार भी आता है चॉकलेट लाता है तो शुरुआत के दिनों में हम लेते नहीं, हम चॉकलेट तुरंत लेते नहीं। फिर मम्मी या डैडी हमको कहते हैं कि नहीं, ले लो बेटा ले लो, फिर हम लेते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव लेना नहीं है, हमारा स्वभाव देना है, ये हमारे कल्चर में ही है। तो हमको कोई 1 रुपए का चीज का 5 रुपया मिलता है तो भी वो हमको हजम नहीं होता है, लेकिन एक सिस्टम इस प्रकार का डेवलप हो गया है और लोग उसी तरफ मुड़ते गए। तो एमएसएमई सेक्टर में हम लोग जो भी करेंगे उसमें से हमने मेहनत करके कमाया, मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं साथ साथ में 10-20 लोगों को जॉब दे रहा हूँ, वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी सुखी है, संपन्न है। तो ये चीज का जब हमको एक महसूस होने लगता है तो उसमें एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये बच्चों को पहले दिन से पैसा कमाकर हम बड़े हो, मेहनत करके पैसा हमारे पास आए, ये सोच हमको लोगों के दिमाग में डालनी पड़ेगी। इसलिए मोदी जी ने सारे सिस्टम को बाइफरकेट कर दिया है, सारे सिस्टम को सबके हाथों में पहुंचाने का काम कर दिया। आजादी के 70 साल टाटा, बिरला और अभी अडानी और अंबानी, ये 4, 5, 6 लोगों के साथ इर्द गिर्द हम घूम रहे। हमको ऐसे 5, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा भारत देश में, तब ये सब आसानी से हो जाएगा, और ये होगा आने वाले दिनों में। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि ये मोदी 2 के कार्यकाल के सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि हर व्यक्ति का कश्मीर के बारे में था, धारा 370। अभी कश्मीर है, धारा 370 को लोग किस तरह से, किस नजरिया से, किस एंगल से देखते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा बिंदु है ये, क्योंकि हमारा देश का एक भाग पूरे कश्मीर के हवाले रहे, और कश्मीर में जो डिफेंस का पैसा हम लोग हर साल खर्चा करते हैं, हमारे इतने सैनिक मारे जाते हैं। रात शाम को आप टीवी पे बैठो तो पूरा 10 में से 2-3 खबर तो पूरा कश्मीर का होता है। बड़े पैमाने पे पैसा साहब जाता था, और इसमें से हमको छुटकारा मिला है, कश्मीर के लोग भी सुखी हो जाएंगे। इतने बड़ा डेवलपमेंट वहां से होगा, और हमारा बॉर्डर अभी पूरा कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक हम अगर आने वाले दिनों में पहुंच जाते तो फिर पाकिस्तान जैसा देश जो हमको हैरान करता है, परेशान करता है, कॉस्टली सब वेपन्स खरीद करता है, तो वो खरीद करता है तो हमको भी करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा विषय है जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, जो कभी बहुत पब्लिक डोमेन में चर्चा में भी आता नहीं है। दूध का भाव खाली 1 रुपया बढ़ गया तो उसके ऊपर 15 दिन डिबेट होता है, लेकिन इतने बड़े दाल का भाव बढ़ गया, कांदा का भाव बढ़ गया तो उसके ऊपर डिबेट होता है। लेकिन डिफेंस में हम लोग इतने बड़े पैमाने पे पैसा खर्चा करते हैं, इतने हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, और एक टेंशन वाले के वातावरण में हम लोग जीते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक काम हो गया। मुद्दा नंबर 1, इतने लंबे अरसों से जो राम मंदिर का मुद्दा जिसके साथ में हम जूझ रहे थे, जो हमारा देश का मुकुट है। देखिए, हम सब एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, मंदिर देश में बहुत सारे हैं, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मंदिर था जिसको मुगल जो लुटेरे इस देश में आए थे, उन्होंने हमारे पूर्वजों के माथे पर एक कलंक लगाकर गया था कि हमारे मंदिर को तोड़कर उसने वहां पर मस्जिद बनाया।
आज देखिए मेरी आवाज को जो भी सुनते होंगे, आज हमारे रिश्ते में भी कोई हमारा अगर छोटा सा भी जमीन हमारे पिताजी ने पैसे नहीं है इसलिए किसी रिश्तेदार के पास गिरवी रखे होंगे, तो उसको बड़ा होकर कमाने के बाद में सबसे पहले मैं वो छुड़वा कर ले लूं क्योंकि मेरे पिताजी को पहचान थी। ये हमारी सोच है। तो ये राम मंदिर का मुद्दा, ये हमारा एक गर्व का मुद्दा है, ये हमारा स्वाभिमान का मुद्दा है। और भगवान राम एक ऐसे आदर्श पुरुष हुए जो आप पूरे देश को अगर ठीक ठाक करने का एक कौन सा मंत्र है, जरिया है, तो मैं मानता हूं कि भगवान राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको हम कहते हैं, कि जिन्होंने लंका जीतने के बाद में भी लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि सोने की लंका हम यहाँ ही रहेंगे, तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, जन्म जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है हमारे लिए, हम हमारे जन्मभूमि में जाएंगे। ये हमारी कल्चर है, ये हमारी पहचान है। इसलिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा अस्मिता का मुद्दा है हमारे लिए। 5 तारीख को हम सब लोग मिलकर उसका जश्न जरूर बनाएंगे। और ये मोदी जी सेकंड में मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। ट्रिपल कायदा को हमने अमल में लाया, बहुत सारे मुद्दा। अभी एक हमारा जुडिशरी के साथ में एक पगड़ा चल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा तो जनरल नॉलेज हो जाएगा, सभी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मोदी जी ने उसके लिए भी प्रयास किया है, मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि आज न्याय जो सबसे सस्ता होना चाहिए, लेकिन आज न्याय सबसे महंगा हो गया है। तो न्याय का कोई मायना ही रहा नहीं है, क्योंकि न्याय सबसे महंगा हो गया। ये सरकार चलाने वाले लोगों ने आउट ऑफ द मेरिट सबको प्रमोशन दे दिया, जस्टिस बना दिए, और वो लोग किस तरह से चलाते हैं, अपना कितना चलाते हैं, दूसरे का सुनकर कितना चलाते हैं, सिस्टम को पूरे हाथ में लेने का काम रूलिंग पार्टी के लोगों ने किस तरह से किया, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी जी ने क्या किया सरकार में आने के बाद में कि यहाँ पर हम एक चेंजेस लाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा या नेता होगा, वो चीफ जस्टिस का चयन नहीं करेगा। उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाई, 4 लोगों की टीम बनाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरा, तीसरा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा वही। इन दिनों में खाली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही अगले का चयन करते हैं, वो किसके कहने पर चल करते हैं उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसका पूरा अथॉरिटी उनके पास है। तो मोदी जी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और चौथा व्यक्ति है ऑपोजिशन लीडर। जो ऑपोजिशन का लीडर होगा उसको भी हम ले लेते, तो पूरा इंडिया ये 4 लोगों में आ जाता है। लकीली बात यह हुई 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पाने के लिए जितने सीट चाहिए थे उतने आए नहीं, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन नहीं पाए। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने पार्लियामेंट में बिल लाया, और बिल में ये लाया कि इनके पास संख्या नहीं है तो भी जितनी संख्या है उतने में उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा देकर उनको ये कमिटी में हम लाने का प्रयास करेंगे। पार्लियामेंट ने बिल पास किया, अपर हाउस ने बिल पास किया, फिर हमने वापस ये 4 मेंबर का बिल लाया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, राज्यसभा ने उसको पास किया, चीफ जस्टिस के पास हमने भेजा, चीफ जस्टिस ने उसको टर्न करके वापस भेज दिया पार्लियामेंट में। अभी आप कहेंगे कि बाबा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो लोकशाही में पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो ये बिल को हमको वापस भेजने की व्यवस्था है। आप 1 बार भेजिए, 2 बार भेजिए, 3 बार भेजिए, तो भी अगर वापस टर्न होता है तो फिर पार्लियामेंट को उसको पास करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इतने सारे झमेले उन दिनों में चल रहे थे, तो उसमें और एक झंझट में न पड़ने का निर्णय लेकर मोदी जी ने उसको पेंडिंग में रखा है, बाजू में रखा है। अभी मैं मानता हूं कि ये बिल भी मोदी जी जो किसी विषय को हाथ में लेते हैं तो वो पूरा करते हैं उनको, और ये बिल भी अगर आगे आने वाले दिनों में हो जाता है तो इसमें से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम लोगों ने बहुत सारे जूने कानून को स्क्रैप कर दिया, बहुत कम हो गए, नए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोगों ने शुरू किए हैं, आर्बिट्रेशन का बिल हमने पास किया ताकि तुरंत आर्बिट्रेशन भी, अगर पहले कायदा था कोर्ट में बहुत सारे केसेस इसलिए आर्बिट्रेटर के पास चले जाओ, लेकिन आर्बिट्रेटर भी 5-5, 10-10 साल लगाते थे। मोदी जी ने कहा कि नथिंग डूइंग, 6 महीने में आर्बिट्रेशन ने उसका पूरा करके उसने जो भी निर्णय उसको देना है वो देना है चाहिए। इस प्रकार का एक निर्णय भी हो गया है। मैं चाहता हूं कि हमको आने वाले दिनों में ये फील्ड में काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को आसानी से न्याय मिले। आज लोग न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाते नहीं, माफ करिए मैं गलत हूं तो, अन्याय करने के लिए भी लोग कोर्ट में जाते हैं, पैसे के बलबूते पर, जोर पर। किसी एक व्यक्ति को बड़े काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, दूसरे को मिला नहीं, इसलिए वो कोर्ट में चला जाता है। उसको मालूम है कि मैं एक बार कोर्ट में जाता तो ये 6-12 महीने रखड़ जाएगा, और उसको फिर हैरान परेशान करने का काम करते हैं। इसलिए आपको कोर्ट से
न्याय मिलने की प्रक्रिया प्रोसेस है वो एकदम फास्ट करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। मैं मानता हूँ कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे जाएगा। सर एक Thank you so लास्ट much, ma'am. क्वेश्चन है OSK रेड्डी। थैंक यू राहुल फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। OSK रेड्डी जी, आप अभी दिख रहे हैं, आप अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हैं। I have one appeal for you Yes, sir. regarding agro sector. Yeah. हमारा देश का अंदर millions of toddy palm trees available, naturally grown. Yeah. There is a scope for at least $1 billion industry through value chain arrangements without spending single rupee on plantations. Yeah. So we are very serious about expansion of existing crops by spending so much of money as subsidies. If we can catch hold of technology sources from Yeah. abroad, Yeah. we can do value for all our toddy palms with $1 billion unit industry. Yes, Our sir. Rafale expenditure we get back within 1 year from our toddy palms. There is such kind of scope. Yeah. Let me come to your point, and I will answer your question in Hindi if you don't mind, because there are many people who are related to this issue. Yes. चारुलता जी और हर्षा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने इस विषय पर भी काम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले ही उन्होंने गुजरात में शुरू किया। He was the one chief minister in our country जिन्होंने सॉइल टेस्टिंग गुजरात में की कि आपके जमीन में क्या आप उपजा सकते हो, और उसके हिसाब से लोग खेती करने लग गए गुजरात में। और गुजरात का आज लोगों का ये कहना है, मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि सिर्फ गुजरात में लोग सुखी है, बहुत सारे राज्य में, पंजाब तो बहुत आगे है, बाकी के सारे राज्य भी बहुत आगे है। अब कुछ राज्य के लोगों को पॉलिटिशियन लोगों ने खेती कम और आंदोलन ज्यादा करने में जोड़ कर रखा है, वो एक बात अलग है। लेकिन मोदी जी ने गुजरात में हर व्यक्ति, हर किसान के घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी हो, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। और मैं डायरेक्ट कभी सेंटर पे आता हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे चेंजेस लाए। यूरिया जो एक जमाने में मिलता नहीं था, यूरिया परचेस करने को लोगों को लाइनें लगानी पड़ती थी, पुलिसों का लाठी खाना पड़ता था, आज हम उस पे 0 पे आ गए। यूरिया लोगों को आसानी से मिलने लग गया। नीम कोटेड यूरिया उन्होंने लाई, क्योंकि हमारा देश का यूरिया जो है वो लोग परचेस करते थे, खेतीबाड़ी में यूज नहीं करते थे, उसको ब्लैक करते थे, उसमें से पैसा बनाते थे। तो नीम कोटेड यूरिया उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, जो दूसरे कोई काम में उपयोग में नहीं आए, इस प्रकार का उन्होंने व्यवस्था किया, और लोग फिर खेती करने लग गए। और आज खेती पहले से बेहतरीन अच्छे स्थिति में हम लोग आज है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अपने देश के कुछ राज्यों के किसान बहुत दुखी है, हैरान है, परेशान है। वो निसर्ग के वजह से नहीं है, वो सरकार जिन्होंने भी इतने लंबे समय तक चलाया, उन्होंने इन सारे बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए पानी, किसान को चाहिए बिजली। हम पानी लोगों को पहुंचा नहीं पाए, बिजली का मैन्युफैक्चरिंग आजादी के 70 साल तक हम 0 नहीं कर पाए। वी शुड गिव अ बिग थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 5 साल में, पीयूष गोयल जी का भी मैं यहाँ पर नाम का उल्लेख करना चाहूंगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस जनरेट आज कर रहे हैं, मोर देन द नीड वी आर मैन्युफैक्चरिंग। एक जमाने में हम लोग डेफिसिट में थे, आज हम लोग सरप्लस में हो गए। और उसके अलावा अदर सोर्सेस, सोलार हो, इस प्रकार के अलग अलग सोर्सेस का हमने उपयोग किया। हमने एलईडी कंसेप्ट देश में लाया, बल्ब सस्ते मिलने लगे और इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत कम हो गया। यानी इतना सारा क्रांति हुआ है जो कभी कभी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी कहना पड़ता है, इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हमको किसानों को आने वाले दिनों में और उनकी जो भी आवश्यकता है उसको जोड़नी पड़ेगी। अब कुछ देशों में खेतीबाड़ी जो है ये मिलकर करने का एक प्रयास भी है। अब किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, तो ये ऐसे छोटे छोटे लोगों ने मिलकर एक करके सारे लोग एक साथ में करते हैं तो कम लागत में बहुत ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। इतनी बड़ी उसमें ताकत है, लेकिन लोग अभी उस माइंडसेट में आए नहीं है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि मेरा ये जमीन ले लेगा तो मैं क्या करूं करके। इसलिए उसको सरकार नाम की जो चीज है उसके ऊपर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और जो न्याय प्रक्रिया है, जो मैंने बात कही, वो एकदम इजी और फास्टेस्ट होना चाहिए, तो लोगों को ये डर निकल जाएगा। तो ज्वाइंट खेती
अगर हम लोग करने का प्रयास करते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। और साथ साथ में मैं एक बात आपको बताऊं, खेतीबाड़ी में लोग हैरान है, परेशान है, लेकिन जो आज हम ग्रो कर रहे हैं वो सरप्लस है। इतने बड़े देश को जो आज की तारीख में हम कहीं पर बारिश हो नहीं रहा है, कहीं पर बिजली मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी जो ग्रो हो रहा है देश में वो आवश्यकता से ज्यादा है, हमारे पास सरप्लस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो बेचारा उगाता है उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी एक भाषण में कहता हूँ, हम होटल में जाते हैं तो छोटा होटल होगा तो भी हम वहां पर एक प्लेट दाल का 150 रुपए देते हैं, उससे बड़ा होटल होगा तो वहां पर 250 रुपया एक प्लेट दाल का देते हैं। लेकिन किसान को अगर हमको 150 रुपया किलो का दाल का देना है तो उसके लिए कितना सारा झमेला खड़ा हो जाता है। हमको थोड़ा उपभोक्ता ने थोड़ा किसानों को अधिक देने की आवश्यकता है। कांदा के बारे में मैं समझ में नहीं आता कभी कभी मुझे कि कांदा के लिए क्यों लोगों ने आंदोलन करना चाहिए, एंड व्हाई दैट ग्रोवर शुड गेट ओनली 10 रुपीज पर केजी। कांदा भजिया अगर सामान्य होटल में आप जाके खाओ तो आपको 50 रुपए पे करने पड़ते हैं, जिसमें 50 ग्राम भी कांदा यूज नहीं होता होगा, और वो मैन्युफैक्चरर को बेचारे को 10 रुपया किलो भी नहीं मिले, उसको 12 रुपए के लिए आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, सारा का सारा कांदा उसको हाईवे पे लाकर गाड़ी के नीचे डाल देना पड़ता है। ये स्थिति क्यों आनी चाहिए? मैं मानता हूं कि कभी कभी वन साइड डिस्कशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन लोग सिर्फ जिनको अच्छा लगे उनके बारे में बातचीत करते हैं। मैं मानता हूं कि जो उपभोक्ता है मेरे और आप जैसे, उन्होंने थोड़ा किसानों को ज्यादा देने के बारे में भी आने वाले दिनों में सोचना चाहिए, तो इसका हल निकलेगा, इसका रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक्स फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने सारे सवालों के इतने विस्तृत में उत्तर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है डिजिटल पार्लियामेंट, उस पे हम आपको ऑन बोर्ड करना चाहेंगे, तो इसके लिए निवेदन है अगर आप हमारा इन्विटेशन स्वीकार करें, हम आपको ईमेल और SMS के माध्यम से हर्षा, इफ यू अलाउ, हर्षा एक छोटी सी बात बता के पूरा करूं? जी सर, जी। हाँ, जो खेती के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे देश का सिस्टम कैसे है, आज भी हमारे देश में छोटे किसान है वो हैरान है, परेशान है, वो जितना उगाते हैं उसमें उसका घर नहीं चलता है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड किसान है जो 2, 5, 10 एकड़ में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करते हैं। इनकम टैक्स में वो बताते हैं कि 10 एकड़ खेती में हमने इतना पैसा कमाया करके, और वो इनकम टैक्स का ऑफिसर भी उसको मान्यता भी दे देता है, सैंक्शन भी दे देता है। कोई एक इंडस्ट्री वाला अगर 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया तो नहीं आपने ज्यादा प्रॉफिट किया करके उसका पूरा वापस चेकिंग करता है, उसको हैरान करता है, परेशान करता है, उसको ज्यादा पैसे भरना लगाता है। ये सारा हमारे सामने पड़ा है। तो एक कमेटी के मीटिंग में आप सबके जानकारी के लिए मैंने एक प्रपोजल मूव किया कि जो 5-10 एकड़ के खेती में करोड़ों रुपया प्रॉफिट साल में करते हैं, ऐसे सारे लोगों का एक लिस्ट बनाना चाहिए, और ऐसे सारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने उनका सम्मान करना चाहिए, और ऐसे सारे लोगों को जो छोटे किसान हैं 2-2, 5-5 उनको दे देना चाहिए कि आपके पास जो टेक्निक है, आपके पास जो फॉर्मूला है, वो आप इनको भी दे दो ताकि ये भी करोड़ों रुपया हर साल कमाए। ये मांग मैंने की है पार्लियामेंट में, कमेटी की मीटिंग में। ये मांग मैं पब्लिक डोमेन में भी ला रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जो आपके अगल बगल में जो इस प्रकार के किसान होंगे जो करोड़ों रुपया प्रॉफिट करते हैं, आप उनके पास जाकर ये फॉर्मूला जरा मांगिए। अब इसका मैं दूसरा आपको उत्तर बताता हूँ क्या है ये स्कैम, क्या है। ये सिर्फ खेती बीती कुछ करते नहीं है, ये बाकी दूसरा तीसरा सब ब्लैक पैसा जहां से भी कमाते हैं उसको व्हाइट करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का खेती का धंधा दिखाकर ये गवर्नमेंट के साथ में फ्रॉड करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में चीट करते हैं। इनकम टैक्स के ऑफिसर जो भी मेरी बात को सुनते होंगे तो उनसे मेरा निवेदन है, अगले साल अगर ऐसा कोई छोटा किसान इस प्रकार का इतना बड़ा प्रॉफिट अगर करता होगा तो उसका फाइल को किस तरह से चेक करके सैंक्शन देना, ये आप 3 बार सोचकर बाद में चौथी बार निर्णय लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रेड्डी जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गोपाल सर, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप हमारा डिजिटल पार्लियामेंट भी ज्वाइन करें और ऑन बोर्ड होए। हम आपके ऑफिस से निखिल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इस विषय में। थैंक यू। श्योर। एक हम ग्रुप पिक्चर लेते हैं, तो हम सबको निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग सब अपना कैमरा ऑन कर ले तो सर के साथ एक ग्रुप पिक्चर ले।
ले सकेंगे। Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bharat Again. Mata ki Yes, sir. jai. Yeah, thank you. Thank you. अच्छा हो गया? बहुत बढ़िया 10,500 में पढ़ भी होते थे